temperature ni stonza te ko tum te mak chal changma sangsngal lang ye media team thuje chejun ge ja is short notice ge skat tene testing bana nge ngati kargili nangpa mimang specially ngata yuli khak kurkan general council member sangmang thuje chejut ji khong sangma singa e like sorki e kuchika yang lan bokjik mos bors tene nyampo dangdring ngata to see development la saste especially recently ngata shakar chiktan na shargol bulagi ngata muslim bahini se salkani video sangena boste spera chikmishik ngas as a president of Kargil Buddhist ikaborchisi borchis po khachan surakwe ringa sangma sangla e clear chen ki sham district char goset ya march to le district zirkhan po dring soma bingkhan sprek menle ne lo mangpo especially 1979 la Kargili district dane na pharla daksa chupa Kargil Buddhist leader then nyampo Kargili nangpa mimang sangme e sondujin pin ki Kargili samchik ngata governor notte kana tharchesi lajuga manangata lam chik duk kaw khirina ngata separate district thopna ngata chi samana tharche duk jikam then 1993 nanga honorable prime minister government of India ngata ju memorandum salte duk nyampo ngata te memorandum ngaji proof ngija gojna mire pasalang salen tene te salte tene ngati tamchik kalas bardon ko juste ko chokna an letter lepse duk ki chief minister of India Jammu Kashmir la chief minister of Jammu Kashmir chokna ngata te tanasi minister kambarali skundunang letter salte duk ki ko de kalas bardon te tanas kalas bardon aji dun khurte ngata mimas de dunna sol duk kaw kherna gumpain min sarayan min रोशक से जगह मीन एंटी कन्वर्शन लाइन मीन जो भी ना प्रॉपर परसेंटेज थप गोसन या डिलिमिटेशन सम सिंगा चिका मियोस फसोसना दोन प्रॉपर छा गोसन तेन छा मना लजुक ngजा ले मार्च जो साल जस्ते ते पॉइंट दुन खुते ngजा ngजी इसकानी लेजोन संदु जाति दुक तेने ते सिंगना 1995 इनांगा तेने लो निस थलथा तेने माना पूरा हिंदुस्तान गांव पे ना ई रिकॉर्ड नो की लो निस धरना दुक जैसे ini de darna dukhani ngata paper cutting indo ngi sumai ka jiks nang jiks nok tani ngata paper cutting tam shidu tani summa proof inok te chanang zerte du yangi jadi ka jiks du march to lezre lba 6 kagel march to lezre dar zola macham shik paper cutting na te changme nanga le asta si cha gusin chez nang aji e genuine dimanun daksa chuppa kargila madub jiste tani sb chauhan skundun honorable then say union minister government of India no khwang ate memorandum fultu then 1979 nanga Jammu Kashmir chief minister yang khwang especially ngati dinami sangma thup se te darne skola chi sangma song se lajuga mana chun spera chi ga ngata sere kargila kamrang is sere tang se te darna othenchi si nova chi ga ngata helps duk che bana meetings miun in spera khirena stak chupa milep ches help na lok song sti kargila action messages bi justin then daksanga ta ko ngaji chairman coordination committees ngija use ki ngata election Ladakh Autonomous Hill Development Council election first election pula boycott justly ka ki je dikana paper cutting ma mangpo paper cutting ayot ka na ngata genuine demand in mean ki proper delimitation ngata sartax proper mecha chespo yana nangpe representative पर drink supang malapyak chinchal lang lepches matches भी जस्ती ते serious पेरा खुरते ngata se ikana sundu jati duale inga especially date nange po che justen se na ngata especially muslim bayun la te dot tikula dang de video la stana te dot tikki mi khachi gi jasti i communal rang tang du jiste te men lenga ji izam lo mangpo na ngata sundu sen 2017 ss boloria representative government of India ngata i khachuli problem po solve jo jese phekong skotyak le tene te chanang ngati ngaji de chana yothani leader ni stam shikala bardon te phone dulla borte nyampo additional new district ngaja district sumpek ladaga thop gosuk de tenga ta job fulse tene 2018 nang yang chief minister representative thuga songste ngata third district ngaja george este ngaja job fulse dugle te macha pe 2014 16 te changme nanga ngaja sham district great george te na ngaja tena shes jeste lo mangpo na sangharsh joste ngaji samshik kalas bardon ten dunla borte tene ten changma asnanga borte especially culturally languagely relations tokna inang ngaja khongna zomat tena zomches duk jeste te speron dunla borte tene ngata se juwa fulkhan jigin dring ekdam ngata i sham district achet dishes po men jkan po khongange de clear chen sam laga
teneng yampo tang inok ki ngatang mangluk sarkar khani ngata yuji to ngatang sama sude chene nok su achi demand jik khonga jobs pe godna khonga khamlat thun pe godna te tok borche singata wangcha to nok su chi bo nang welcome inok nijes district sto tenok nijes district shakar chiktan na chargola masat pe sarkar chiktan na chik chargola chik sal mol lekin ngaji chona pe unki ngajes demand tangkan po lo mangpo na 1979 na daksa super lo jipchur khapchu na ngaje sangarsh kan spreading dring somek men's kan po ngija UD media gutte ngija juk samrak tene yang tam chik ping minen tene एक चीज जो थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ यार, अभी हमको यहाँ पे एक सोर्सेज से हमको ये भी पता चला कि जो अभी मुस्लिम जो कम्युनिटी की खासकर शक्कर चिकतन और शरगोल, और उसमें भी जो शरगोल तहसील के जो कमेटी बना है उनका एक उन्होंने कोई जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया है। तो उन्होंने यहाँ तक भी इस तरह से भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर उनका डिमांड पूरा नहीं होता है, शक्कर चिकतन और शरगोल को जो है अलग से डिस्ट्रिक्ट ना मिला जाए या मिला जाए तो अगर उनको डिस्ट्रिक्ट कारगिल में रखा जाए, अगर इस तरह से नहीं हुआ तो यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो सकता है, कम्युनल क्लैश हो सकता है। ऐसा करके वो जो है एक तरह से थ्रेटनिंग टाइप गवर्नमेंट को देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेट है। हर किसी को अपना डिमांड रखने का पूरा हक है। डिमांड पूरा होता है नहीं होता अलग बात है, लेकिन ये कहना कि अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा तो यहाँ पे कम्युनल राइट होगा, तो ये एक तरह से उनका यही मेंटेलिटी दर्शाता है कि अगर ये नहीं होगा तो हम राइट करेंगे, ये नहीं होगा तो हम वो करेंगे। हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से, एलबीए कारगिल की तरफ से और हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया, हमारी तरफ से ऐसा हम लोग ना, हमारी तरफ ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कहीं भी कोई भी इसमें जो है कम्युनल क्लैश हो, कम्युनल डिसहार्मनी हो, पीस को किसी भी तरह का वो हो। अब इस तरह का अगर आप लोग स्टेटमेंट देते हो, अगर हमें जो है इस तरह से डिमांड पूरा नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऐसे लोगों को आप लोग जो है मेहरबानी करके इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों इस तरह से आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को अभी से ही आप लोग इस तरह से आप एक तरह से आप लोग थ्रेटनिंग देते हो। यही चीज जो है पहले भी कई बार हो चुका है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का किसी भी तरह से हमारे सोसाइटी में जो हमेशा हम लोग पीसफुली रहना चाहते हैं, उसमें इस तरह के कोई हमारी तरफ से ना कोई ऐसा स्टेटमेंट है, ना हमने कभी किसी के अगेंस्ट कोई कुछ बोला है। हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डिमांड है, जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, उसी को गवर्नमेंट के आगे रख रहे हैं और हमारे डिमांड रख रहे हैं। बाकी हमारा कमेटी बना हुआ वो रिपोर्ट देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है फाइनल डिसीजन जो भी लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो संकट साहब को मुबारकबाद करते हैं फ्रेटर्निटी की जानिब से, क्योंकि फ्रेटर्निटी से आपका काफ़ी पुराना ताल्लुक भी रहा है, रिश्ता भी रहा है सरों साहब के साथ भी। तो मेरे सवाल ये होगा, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके, उसके बाद आपके काफ़ी कंप्लेंट्स थे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट को लेके या सब डिवीजन स्टेटस या डिलिमिटेशन को लेके। मेरा पहला सवाल यही होगा कि आप लोगों ने भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी फ्रेम की है, सिमिलरली शक्कर चिकतन शरगोल ने भी की है। वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ पूरे ऑल सोशो पोलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि आपके साथ तमाम सोशो पोलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा कि सब को कॉन्फिडेंस मिला के एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के, और इनका ये भी दावा है कि आप दावा कर रहे हो कि जितने भी विलेजेस जैसे सापी हो, शरगोल हो, फुकर हो या वाखा मुलबेग या खंगराल जो भी हो, उसमें जो मुस्लिम जो विलेजेस पड़ रहे हैं उन पर भी काफ़ी असरात पड़ेंगे अगर शम के साथ मर्ज हुए। तो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आके सबको कॉन्फिडेंस मिला के बड़ा एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक बड़ा डिसीजन लेने का आप लोगों ने सोचा नहीं सकते कि शक्कर चिकतन भी इन्वॉल्व हो और शरगोल के साथ साथ आपकी माइनॉरिटीज भी हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली बात तो जैसे कि अभी हमारे संपेल साहब ने बताया और मैंने भी बताया कि ये जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है कि हमें 1-2 दिन पहले या अभी डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट होने के बाद हमसे निकला हो। ये बहुत ही पुराना डिमांड है हमारा, और हमारा स्ट्रगल भी बहुत पुराना है। 50-60 साल का हमारा रिकॉर्ड है हमारे पास। 1984 से लेकर अभी तक हमारे जो भी हो, जो चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो चाहे जो भी हो, वो बहुत पुराना है। तो इसमें हमारी तरफ से, खासकर एलबीए कारगिल की तरफ से या बुद्धिस्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को बोलें कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बहुत पुराना डिमांड है। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि खासकर हमारा जो शक्कर चिकटन में हमारे मुस्लिम है और हमारे तहसील शरगोल में भी जो मुस्लिम है, हम उनको कोई, हमारी तरफ से हम उनको कुछ नहीं बोल रहे। हमारा जितना भी आज तक यहाँ पे मेमोरेंडम गया है और जितना भी हमारा प्रॉब्लम हुआ है, वो हमारा कारगिल, डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक पॉलिटिक्स और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक जो भी वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है उनके खिलाफ है। वो हमारे एलबीए करगिल के उसमें भी, रिकॉर्ड में भी है। करगिल गोनपा का अभी कुछ साल पहले कोई रिजोल्यूशन अभी निकला है, लेकिन वो भी एलबीए करगिल का स्ट्रगल है। वो डिसीजन भी डिस्ट्रिक्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वजह से हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें प्रॉब्लम हुआ। चाहे डिलिमिटेशन का इशू है, उससे हमें शरगोल और शक्कर चिकटन के मुस्लिम भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा डिसीजन जो है ये एस्ट्रायल जम्मू कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उनकी वजह से हुआ था। SRO 450 के तहत जो है सब डिवीजन का किसको देना नहीं देना, शरगोल को देना नहीं देना, शक्कर चिकटन को देना और ये जो है सख्त खंगाल को नहीं देना, वो डिसीजन भी जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक पॉलिटिक्स और जम्मू कश्मीर, एस्ट वाइल जम्मू कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के साथ हुआ है। तो हमारा जितना भी आज तक स्ट्रगल हुआ, जितना भी हमने एजिटेशन किया है, जितना भी हमने ये डिमांड किया है, वो डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अलग होने का हमने डिमांड किया है। हमारा शरगोल और शक्कर चिकटन में जो जितने भी हमारे भाई बहन रहते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। दूसरी बात, अभी हमारे पास रिकॉर्ड है 1995 और 1997 कंटिन्यूसली। आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पता हो ना हो, तो आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। कंटिन्यूसली 2 साल कंटिन्यूसली 1995, 96, 97 सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होते हुए भी, गर्मियों में कंटिन्यूस हमारे लोगों ने इस इलाका बुद्धिस्ट एलबीए करगिल के बुद्धिस्ट ने इसी मुलबेग के डगबंगले पे जो है हड़ताल किया था, स्ट्राइक। क्यों स्ट्राइक किया था? क्योंकि हमारे बहुत से लोग, मोर देन 60-70 हमारे लड़कियों को और कई बच्चों के माओं को जो है कन्वर्ट किया गया था। हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। लेकिन जब वो स्ट्राइक चला था 2 साल कंटिन्यूस, शक्कर चिकटन के हमारे मुस्लिम भाई बहन, इसी तहसील शरगोल के जो भाई बहन, किसी ने हमें नहीं पूछा कि भाई आप लोग क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, हम आपके साथ देंगे, हम सब लोग एक ही गांव के हैं, एक ही पड़ोस के रहने वाले हैं। आपके साथ ये नाइंसाफी हुआ, आपके साथ इतना दुख दर्द हुआ, इतना कुछ हुआ, हम आपके साथ हैं। किसी ने पूछा नहीं। उसी रोड से चलते थे, उसी सड़क से कारगिल से जाते थे, शक्कर चिकटन जाते थे, लेकिन किसी ने आज तक उस ट्रेन में जो हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन सड़ रहे थे, मर रहे थे, किसी ने पूछा नहीं। और हमने कभी उनको नहीं बोला कि हम क्यों पूछ रहे, हम अपने बलबूते पे स्ट्रगल करते रहे। तो आज हम उनको पूछने का हमारा कोई वैसे भी कोई तुक नहीं बनता है। दूसरी बात आप लोगों को मैं एक और बात बताता हूँ। 2006 में अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ था बहुत खरबू का, पूरा रिकॉर्ड है। अभी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आप जो हम बात कह रहे हैं, हमने रिटर्न में भी दिया है, मेमोरेंडम में भी, अगर आप चाहे तो इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें। 2006 में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बहुत खरबू मस्जिद में कुरान जलाने का, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और उसकी वजह से कितना कम्युनल टेंशन हुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जितने भी मॉन्क्स रहते थे, जितने भी किराएदार रहते थे, जो वहां पे नौकरी करते थे, मुलाजिम, सबको दौड़ा के, भगा के, मार के डिस्ट्रिक्ट कारगिल से बाहर निकाला था। वहां पे हमारी दुकानें थे, उसको तोड़ फोड़ के बाजार में दिया था। अचो संपेल का इसका खुद का कंप्यूटर का दुकान था, बीच बाजार में लाके सारा तोड़ फोड़ किया था। सबको आप लोगों को भी इसका पता है। और चिकटन में, शक्कर चिकटन सब डिवीजन जो है वहां पे बहुत खरबू में, शक्कर चिकटन के है कि डिस्ट्रिक्ट करगिल के हमें नहीं मालूम, लेकिन वहां के मुस्लिम आके बहुत खरबू के बुद्धिस्ट गांवों के घरों में पथराव किया था। उस टाइम हमारे स्पेंदर खान साहब जो अभी कमेटी के मेंबर भी है, डीसी कारगिल था, उन्हीं के डीसी कारगिल के चेयरमैनशिप में वहां पे वो बना था, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। उस टाइम हमारे शक्कर चिकटन के मुस्लिम और हमारे तहसील शरगोल के मुस्लिम, हमने उनसे कभी मदद का गुहार भी नहीं लगाया और ना ही उस टाइम उन्होंने हमें मदद किया। तो अगर ऐसा है तो फिर आज की डेट में जो हमारा बहुत पुराना वो चल रहा है, तो उसमें हम एक प्लेटफॉर्म में आने का, ऐसा नहीं कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना कई सालों से हमारा एक चल रहा है। तो बीच में फिर अभी हम उनसे ये कहें कि आप हमारे साथ दे दो, आज हम ये करेंगे, ऐसा कोई वो ही नहीं है, क्योंकि हमारा कई सालों का, 50-60 सालों का हमारा डिमांड चल रहा है। और मुझे नहीं मालूम शक्कर चिकटन वाले और तहसील शरगोल के जो अभी मुस्लिम कम्युनिटी के जो कमेटी बनाया है, उनका जो है सेपरेट
शक्कर चिकटन और तहसील शरगोल को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का डिमांड हमें तो नहीं मालूम, हम ये भी नहीं कहेंगे, वो उनको खुद को पता होगा कि कब से वो लोग इस तरह का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से कभी भी हमने इस तरह का डिमांड नहीं रखा। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड था, डिस्ट्रिक्ट करगिल से अलग करके या तो हमें ले डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया जाए, नहीं अगर डालता है तो एक शाम रीजन और शाम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके उसमें डाला जाए। उसी बेसिस पे आज हमें जो है शाम डिस्ट्रिक्ट मिला है। और हम आपको ये भी बताएं, आज जो शाम डिस्ट्रिक्ट आज मिला है शाम को, उसमें शाम डिस्ट्रिक्ट बनने में हमारे एलबीए करगिल का स्ट्रगल जो है मेन फैक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह लगा है कि इस शाम रीजन को भी बनाने की जरूरत है। और अभी हमारे मुस्लिम भाई जो है कम्युनल हार्मोनी की भी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये शाम डिस्ट्रिक्ट जो है कम्युनल हार्मोनी का पूरे लद्दाख में बेस्ट एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। अब सबको मालूम है इसमें ले के आधे गांव आने वाले हैं और करगिल के आधे गांव आने वाले हैं। तो इससे अच्छा कम्युनल हार्मोनी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अभी जो कमेटी के मेंबर अभी बोल रहे हैं कि भाई अगर इस तरह से शाम डिस्ट्रिक्ट में हमको जबरदस्ती डाला गया तो कम्युनल राइट हो जाएगा, क्या मतलब है इसका? हम मिलजुल के आज तक रहे हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। और शाम डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट, पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट एग्जाम्पल बनने वाला है कम्युनल हार्मोनी का। मिलजुल के दोनों डिस्ट्रिक्ट का, ले में 2 डिस्ट्रिक्ट, करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट और जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें दोनों ले डिस्ट्रिक्ट से भी गांव जुड़ने वाले हैं, करगिल डिस्ट्रिक्ट से भी गांव जुड़ने वाले हैं। तो हम इसको एक कॉपरेशन की तरह, एक पीस की तरह, एक उसकी तरह से क्यों ना देखा जाए? क्यों ये कहें कि इसमें कम्युनल राइट होगा, कम्युनल क्लैश होगा? ये क्यों ना कहें कि शाम डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनल हार्मोनी एंड कोएग्जिस्टेंस। थैंक यू। साहब, आपने काफी कंप्लेंट किया अगेंस्ट, तो इनमें सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा आपसे कि मेन इशू जो है आपको प्रॉब्लम करगिल के लीडर से आ रहे हैं आज तक या करगिल के लोगों से है आपको? और आपने बहुत सारे कंप्लेंट किए, अनगिनत आपने कंप्लेंट किए करगिल के अगेंस्ट। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चलो यूटी तो अभी नए आए हैं, 5 साल हुए हैं, इससे पहले आप लोगों ने 1995 से भी 99 से भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना सपोर्ट? देखिए, एक बात तो हम ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, हम जब पहले भी खासकर एलबीए की तरफ से भी ये कई बार बोला गया है कि हमारा जो है आम लोगों से, कारगिल के, डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जितने भी आम हमारे मुस्लिम भाई बहन है या हमारे शरगोल में है या शक्कर चिकटन में, हमें आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम सबको पता है बेचारे आम लोगों को तो वैसे भी कुछ इन चीज़ों का जो है वो नहीं होता। हमारा जो है मेन फाइट जो है एलबीए करगिल का और ये जो बुद्धिस्ट गांव का है, वो फाइट जो है वो है एस्ट रॉयल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ और डिस्ट्रिक्ट कारगिल सेंट्रिक, चाहे वो एलएचडीसी का हो, चाहे वहाँ का जो भी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इसीलिए क्योंकि ये सारे डिमांड्स और ये सारे हमारा स्ट्रगल है वो पॉलिटिकल इन नेचर है। वो सारा जो है हमारा, जो चाहे वो गोनपा का इशू भी ले लो, चाहे वो सराय का इशू ले लो, चाहे वो क्रेमेशन ग्राउंड का इशू ले लो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का इशू ले लो, चाहे जो मर्जी इश्यूज है वो सारा है। तो हमारा एस्ट रॉयल जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के साथ हमारा इस तरह से डिमांड था और वो डिमांड जो है उस टाइम जो एस्ट रॉयल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट था उसके साथ हमने उठाया भी है। तो एक बात हम ये बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा आम लोगों से हमारा बहुत, हम सबको पता है जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम जो है नॉर्मली हमेशा मिलजुल के रहा है। लेकिन जब पॉलिटिकली और अदरवाइज किसी तरह के अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफी होता है तो हर किसी को हक है अपना जो है बात आगे रखने का। डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो हमारे मुस्लिम है उनको भी हक है अगर उनके साथ कोई ज्यादती होता है तो उनको रखने का। तो आज हम जो है पुराने इतने सालों का जो डिमांड है उन सब का जो है सॉल्यूशन हम क्या देखते हैं कि हम सब को जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल से अलग करके शाम डिस्ट्रिक्ट में डाला जाए। और ये हमारा बहुत पुराना डिमांड है और हमें नहीं लगता इस डिमांड से किसी को भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्वेश्चन होगा सर, हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट संतन साहब से हमारे 2 बड़े कमेटीज बने हैं सर, लद्दाख की अगर हम बात करें, लेह में अगर बात करें तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक होकर एपेक्स बॉडी बना है करगिल में, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है। लद्दाख के बड़े बड़े मुद्दों को, छोटे छोटे इशू को लेकर वो लोग बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो कितना सपोर्ट रहेगा सर आपका करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी को एज ए न्यू प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का? जैसे कि आपको पहले पता है कि स्पेशली करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने क्लियरली ये अपोज किया था कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है हमारा रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसका एक रीज़न था क्योंकि हमने पहले जब डिवीजन स्टेटस के टाइम पे हमने संघर्ष किया था
उस टाइम भी एक ऐसे ही केडीए की माफिक एक ग्रुप बना था जिसमें ऑल पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप था। उस टाइम हमको इंश्योर किया था कि आप लोगों का जो इशू है, स्पेशली 3 इशू, गोम्पा, सिरे और ये कमीशन ग्रोन का, उसका प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट इशू होगा वो होगा। तो वो होने के ये सब डिसाइड होने के बाद उस टाइम हमने शाना बाशाना पूरा उस टाइम का ग्रुप के साथ मिल के हमने ये डिवीजन स्टेटस के लिए संघर्ष किया था। तो वो करने के बाद जब लास्ट में हमने क्या देखा कि वो रिलीजियस 2 ग्रुप के बीच में अनबन की वजह से हमारा वो 3 पॉइंट सोल्व करने वाला था वो बिल्कुल ही नष्ट नबूद हो गया, कहीं नजर ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट दोबारा एक सिचुएशन ये है कि दोबारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म करने का टाइम आया। तो उससे हमने क्लियर बोला था कि भाई आप लोगों का कहने और कथनी में फर्क है। आप लोगों ने हमें इश्योर किया था कि ये 3 प्रॉब्लम जो है पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, करगिल का कोई भी डेवलपमेंट इशू उसके बाद होगा बोल के हमको इश्योर किया था। उस टाइम का इस्लामिक स्कूल हो, चाहे टीएमटी हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, सब ने इंश्योर करने के बाद हमने यही बोला था कि जब तक ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हमने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ नहीं देना। अभी चलो रिसेंटली गोम्पा का इशू भी सॉल्व हो गया है, सिरिया का भी हो गया है, कमीशन ग्राउंड के लिए भी जमीन दिया है। इसलिए हमने रिसेंटली हमारा वाइस प्रेसिडेंट मैडम कुंजस को हमने केडीए को लेटर लिखा था कि हमारे तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव हाई पावर कमेटी का मेंबर है बोल। तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है करनी और कितनी में फर्क कम नजर आ रहा है। फिर भी हमारा आपका सवाल का जवाब यही है कि उस टाइम साथ नहीं देने का ये रीजन है। अभी हमारा जब तक हमारा जेन्युइन डिमांड पूरा होगा, हमारे स्पेशली हमको ये देखता है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि अभी जो रिसेंटली एकदम सडनली शकर चिकन और शरगुल ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट चाहिए बोलने वाले बात जो है एकदम होने वाली चीज तो है नहीं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये हमें ये लग रहा है कि हमारा पुराना संघर्ष जो है उसको कमजोर करने का एक चाल जैसा हमको लग रहा है। तो इसलिए हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग, अब हम सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हुए, हमें हक है कि कोई भी डिमांड रखे, लेकिन दूसरों की टांग खींचने की जरूरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा डिमांड जो है जेन्युइन है और प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाया गया है। पेपर कटिंग भी है, मेमोरेंडम भी है। हमने पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहा है जो कि फुलफिल होने जा रहा है। तो वो ठीक है, हम वेलकम करते हैं। अगर हम शाम डिस्ट्रिक्ट में गया, वो दोबारा फिर एक डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है तो उसमें हमें फायदा हो तो हम उस टाइम हम उस पर बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो हमारा बात बन रहा है उसमें तंग नहीं आ जाना चाहिए। हमारा ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो हमारा डिमांड जो है जेन्युइन है। अभी क्लियर हमारे नुरगू साहब ने बोला, हमारा एक ही मकसद, एक ही डिमांड है, हमको शाम के साथ मार्च करना है। एलबीए के वुमेन प्रेसिडेंट इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मौजूद है कि नहीं? हमारा नहीं, मैडम है जी। एक बात आपको बताएं, जो अभी ये एलबीए कारगिल के अंडर जितने भी हैं उसमें मैडम कुंजस डोलमा जो वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कारगिल एलबीए का, ले में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में वन ऑफ द को चेयरमैन है। आज उन्होंने इस मीटिंग में आना भी था, लेकिन हमें ये पता लगा कि उनका अभी जो है कल वहाँ दिल्ली से आने के बाद वुमेन रिजर्वेशन से लेकर कोई सेलिब्रेशन वहाँ कर ले में चल रहा है, तो उन्होंने वो आज इस मीटिंग में आ नहीं पाए। पिछले कई मीटिंग में मैडम कुंजस ने अटेंड भी किया है। एलबीए कारगिल का सभी ने यूनिनिमसली उनको जो है हाई पावर कमेटी में भी एलबीए कारगिल ने ही उनको इलेक्ट वो करके भेजा हुआ। तो इस पूरे हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी और मर्जिंग शाम डिस्ट्रिक्ट में मैडम कुंजस जो है वन ऑफ द लीडिंग एंड की फैक्टर है। और उन्होंने सेपरेटली भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी एज वाइस प्रेसिडेंट एलबीए कारगिल इन ले मेमोरेंडम दिया। अभी रिसेंटली दिल्ली में भी उन्होंने एमओएस होम से मिलकर और जहाँ जहाँ भी मिलना हो उनको यही सेम डिमांड जो आज हम कर रहे हैं वो हर जगह जो है वो भी हमारा रिप्रेजेंट करके, इन सभी गांवों को रिप्रेजेंट करके उन्होंने सबमिट किया है। सर, इससे पहले ज्वाइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एलएचडीसी कारगिल ने दिया था, उसमें आपके वुमेन प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, तब उनका स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। पहले जब कमेटी बैठा था तब आपके वुमेन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आया था, हम शाम डिस्ट्रिक्ट के साथ जाना चाहते हैं। तब जब एलएचडीसी कारगिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाया तब उनका स्टेटमेंट में चेंजेस देखा, उसके क्या वजूहत? इसका जो रियल जवाब है तो वो तो वही दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मीटिंग भी उन्होंने अटेंड किया।
तो उनके बिहाफ पे तो हम कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें पता है उस वहाँ पे उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हर किसी को अपना डिमांड रखने का हक है, चाहे वो संकू का डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो शक्कर चिकतन शरगोल का हो और हमारा शाम डिस्ट्रिक्ट का हो, वो हर किसी को जो है अपना डिमांड रखने का वो है। लेकिन वो मीटिंग अटेंड करना, उनका इस तरह का स्टेटमेंट देना, उसका असली जो है जवाब जो है मेरे ख्याल से मैडम खुद ही दे सकते हैं। आप ये सवाल अगर उनसे पूछे तो वो ठीक रहेगा। पब्लिक में कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आखिर उसमें क्यों दिया? फिर अगर आप शाम डिस्ट्रिक्ट के साथ जाना चाहते हो तो नहीं, उस मीटिंग अटेंड करने से और जो मैडम ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया उससे तो कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि हम शाम डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं चाहते हैं। ऐसा तो कई स्टेटमेंट में भी नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वो मीटिंग जो है जहाँ तक हमें मालूम है वो सिर्फ बजट को लेकर और कई चीजों को था। और न्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए था। डिमार्केशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट शाम में नहीं जाने वाला मत और नहीं लिखा था ना, स्टेटमेंट नहीं था, वो तो स्टेटमेंट नहीं था। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा था कि डिमार्केशन अच्छे से होना चाहिए और पीस ऑफ हार्मनी का ऑब्वियस सी बात, वो तो हम भी कहते हैं ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हम ये कहाँ से प्रूव होता है कि ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी हमारा डिमांड है, वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का और हमारा हक है, तो इन सब को अगर शाम डिस्ट्रिक्ट में मर्ज किया जाता है तो उसमें कम्युनल डिसहार्मनी कहाँ से क्रिएट होगा? आप खुद ही बताइए कैसे क्रिएट होगा, क्यों होगा? बाउंड्री को छेड़ने से क्यों? वो तो भारत सरकार का हक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बनाते हो 5 डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम जब एक ही डिस्ट्रिक्ट था ले, फिर डिस्ट्रिक्ट बना करगिल 1979 में, उस टाइम भी डिमार्केशन हुआ था। जैसे भी हुआ, हमें कहा, पूछा नहीं पूछा, कमिटी बनाया, जबरदस्ती बनाया, जैसे भी बनाया, वो गवर्नमेंट का हक है पावर को डिसेंट्रलाइज करना और एडमिनिस्ट्रेटिव करना। आज की डेट में सरकार ने 5 नए डिस्ट्रिक्ट दिया, तो उसी लिए अभी कमिटी हर जगह से पूछ रही है, हर स्टेक होल्डर से पूछ रही है कि और देख रही है, हर कुछ देख रहा है, लोगों का प्रॉब्लम सुन रहा है। सुनने के बाद कल को अगर डिमार्केशन होता है, कोई भी डिसीजन होता है, तो उसमें कम्युनल डिसहार्मनी होने का या कम्युनल राइट होने का या क्लैश होने का उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। कल को जो जैसा भी डिसीजन होगा वो हम सब लोग करके लद्दाख को हम सब यूनाइटेड ले कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन रख के आगे ले जाना, यही हम कहते हैं ना। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि अगर ये करोगे वो करोगे तो ये होगा। तो अभी मैंने यही इसीलिए कहा कि शाम डिस्ट्रिक्ट अगर बनता है तो शाम डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कम्युनल हार्मनी इन होल लद्दाख। तो इसमें तो कम्युनल क्लैश और इसका तो कोई सवाल ही नहीं। आखिरी सवाल होगा सर, चलते 8 दिसंबर मीटिंग को आप किस तरह देखते हो, और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल 6 शेड्यूल के अगेंस्ट में होगा या फिर बोलना? एलबीए का तो मेरे ख्याल से ये का तो हमारा हाई पावर कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेटिव मैडम कुंजस गया है। तो हमारा जब रिप्रेजेंटेटिव गया है तो वो 6 शेड्यूल हो, चाहे कोई भी सुरक्षा हो, चाहे ज़मीन को लेकर, चाहे हमारा जॉब को सिक्योरिटी को लेकर, उसके लिए तो वो हमारे लिए भी वो ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हमारा वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव अटेंड किया हाई पावर कमेटी। इसमें अगर कोई भी चीज़ होगा ना, जैसे मान लो अभी हमारा एलबीए कारगिल की तरफ से हमारा मैडम कुंजस जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ कारगिल की तरफ से रिप्रेजेंट करके हाई पावर कमेटी में गई है, और अगर कोई भी डिसीजन जो है वहाँ पे हाई पावर कमेटी में एपेक्स केडीए सभी लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें ये लगा कि कल को अगर कोई ऐसा डिसीजन हो रहा हो या होने वाला हो जिससे हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो कारगिल में है उसको अगर कोई आहत होने वाला होगा, तो हम मैडम के साथ यहाँ पे मीटिंग करेंगे एलबीए कारगिल का, और उसी हिसाब से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अभी तक जो भी टॉक चल रहा है वो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में चल रहा है। ये हम सब पूरे लद्दाखियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खासकर ये जो रिक्रूटमेंट का जो इशू है वो हमारे लोगों का बहुत अच्छा एक सोल्यूशन हुआ है, और वुमेन रिजर्वेशन का भी एक डिसीजन आया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का भी डिसीजन, वेलकमिंग डिसीजन है। उनको हम यहाँ के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं हम सब वेलकम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और एपेक्स और केडीए जो है पूरे लद्दाख के जितने भी इश्यूज है वो एक अच्छे माहौल में, पॉजिटिव माहौल में सब लोग मिलजुल कर जो है जो भी लद्दाख के हित में होगा वो सारे डिसीजन जो है हमें उम्मीद है वो सरकार लेगी। जिस तरह आपने एलबीए में रिशफल की, सिमिलरली एलबीए यूथ में भी आपने रिशफल की, क्योंकि दूसरे साथ दिखाई नहीं, एलबीए यूथ में कोई रिशफल नहीं है, किसी चीज में नहीं है। सारे एग्जीक्यूटिव्स, जीसीएम्स, एलबीए यूथ विंग सभी सेम है। सिर्फ हमारा प्रेसिडेंट मुरूब साहब हेल्थ की वजह से उनको रिजाइन देना पड़ा, इस वजह से जो है सिर्फ नया प्रेसिडेंट जो है संफेल साहब अभी इलेक्ट हुआ, और दुर्जन अमग्याल साहब अभी वो किसी काम से चंगथंग गए हुए हैं तो वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन हमारा वाइस प्रेसिडेंट एलबीए यूथ का यहाँ पे प्रेजेंट है। सर, जिस तरह आपने एक नंबरदार की भी जिक्र किया, साइन लिया है, वो यहाँ पे मौजूद है?
शरगोल का हमारा एक नंबरदार था, उन्होंने हमारा एलबीए कारगिल में यहाँ पे मीटिंग में आके उन्होंने ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि क्योंकि हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ये सारा कुछ हुआ था तो उन्होंने ये जिक्र किया कि इसमें बुद्धिस्ट का नंबरदार भी इन्वॉल्व है। जब हमने पता किया तो उसमें शरगोल का नंबरदार का साइन था। जब हमने शरगोल का नंबरदार को यहाँ पे एलबीए कारगिल में ऑफिस में बुला के उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये साइन मेरे से बहुत कई दिनों पहले लिया था, उस टाइम इसका मतलब इन चीजों का ज्यादा जिक्र भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा अभी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वो किसी काम से कहीं गए, लेकिन इस तरह से हुआ किया था, तब मैं भी मौजूद था, तो उन्होंने बोला था माइनॉरिटी का, ये तो आप ये शरगोल का है, इनसे आप स्टेटमेंट ले लो। शरगोल का पहले नंबर में भी था, उसको उससे जबरदस्ती लिया, उसको इन्हें बोला यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट असम डिस्ट्रिक्ट के साथ जाना है बोल के उसने जबरदस्ती उससे सेंड लिया। तो यहाँ उसने बोला ये क्या है, उसने बोला हम शम डिस्ट्रिक्ट के साथ जाना है, सब यूनियन पे जाना है, सेंड करो, जबरदस्ती उससे। हाँ, और एक बात बताऊं, वो बेचारा जो नंबरदार है ना, वो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल गांव का है, उस बेचारे को बिल्कुल नहीं पता है उसमें क्या लिखा। उसको सिर्फ ये बताया गया कि इस पे साइन करो, ये शाम डिस्ट्रिक्ट में मर्जिंग के लिए है, तो उस बेचारे ने साइन कर दिया। बाद में आके यहाँ पे एलबीए कारगिल में स्टेटमेंट दिया था। हम इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे, हम इसके अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। जैसे मैंने शुरू में बताया, हम नहीं चाहते थे कि हमारे मुस्लिम और बुद्धिस्ट के बीच में किसी भी तरह का कोई क्लैश हो, जबकि ये जो कमेटी है इन्होंने गलत तरीके से ये प्रूफ करने की कोशिश की कि उनके डिमांड के साथ बुद्धिस्ट भी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धिस्ट का आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि हमें शाम में नहीं जाना। एक घर हमारे पास साइन है, हमारा ये साइन है, हर घर का हेड का हमारे पास साइन है, हर बुद्धिस्ट लीडर का हमारे पास साइन है, हर गोबा मेंबर का हमारे साइन है, कुक्षो पचारिक से लेकर सापी तक। एक भी बुद्धिस्ट ऐसा लीडर या कोई इंडिविजुअल नहीं मिलेगा जो, तो कहने का मतलब है वो कि गलत तरीके से इस तरह की चीजें करने की कोशिश की है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम और बुद्धिस्ट के बीच में किसी तरह का भी क्लैश हो, इसीलिए हमने ना कंप्लेन किया, ना हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जबकि वो शरगोल का नंबरदार खुद आके यहाँ पे बता गया कि मेरे से गलत तरीके से साइन लिया गया। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.